Hello. Today, I have the pleasure on this podcast of hosting Miss Neetu Mohanka. So, we are broadly contemporaries, and both of us are ex Tata Steel also. So, that's the common connect. And I was recently attending a workshop by Neetu on the mind and the mindfulness and the stress management and how can you be more agile. And I was like spellbound because I've seen that transformation. So I last seen her online in the pre-COVID era or somewhere around then. And from there till now, that transformation is like amazing. I said, Neetu, you got to come here and talk about this transformation to the audience on this channel because for sure it is something that I am fairly confident is going to add value. So Neetu, quickly, if you can tell me about, a snippet about who you are, from where are you, where have you worked, till the journey till now. You have been in Right. FP&A in large corporates, so Tata Steel and Avon, and then a practicing CA, and now a startup mentor. So all these years, how did you every time realize that there was something better waiting for you? What were the triggers? Yeah, that's how I am, Anurag. Never happy with something, doing, forever. So I have to keep doing different things to be getting that kick out of working, right? So I started my journey with Tata Steel in 2007. Then I got married, moved to Delhi. I joined American Express over here, then joined Avon, Tupperware. Uh, More or less 6 7 years of corporate stint, and then I realized this is not for me. And finally I took the plunge and started freelancing as a consultant and became practicing chartered accountant, and I started working a lot with startups. So that got me really interested because when I was in corporates, I was doing the same thing in and out for months together. Here, when I was working with startup, I got the opportunity to work in different departments, different profiles, and I have also done payroll. I have done hiring. I have done HR process management, MIS management, KPI management for startups, and this got me really interested. Then I started working with few investment banking firms and started generating leads for them, for startups who would come for fundraising with them. And I studied almost 700 800 startups, and now the count would be like more than 1,000 startups now. कि मैंने उनके साथ काम किया है, उनके बिजनेस मॉडल्स को समझा है, उनका मतलब नीश समझा है मार्केट का। एंड इसमें इतना इंटरेस्ट आ गया मुझे कि मैंने वीराइज को स्टार्ट किया एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्लेटफॉर्म। काफी इसमें मैंने मतलब उनको फंड रेजिंग करने के लिए कोशिश करी, बट ऑनेस्टली मेरा वो नीश नहीं था फंड रेजिंग का, आई बिलीव। सो आई रेस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू हेल्पिंग देम विद ग्रोथ एडवाइजरी, कि आप लोग क्या बिजनेस मॉडल्स बनाओ, क्या रेवेन्यू मॉडल्स बनाओ जिससे आपको स्टार्टअप में ग्रोथ आए। So I advise them with that. I help them with their financial models, business valuations, and also MIS and KPI management. Process management में मेरा काफी experience रहा है, तो उसमें भी मैंने काफी startups को help किया है. So that's that. उसके बाद मुझे एक अच्छा break मिला Viridian के साथ, जहाँ पे मैं स्टार्टअप इनेबलर की तरह काम करती हूँ उनके कोहॉर्ट्स के लिए, एंड आई टेक केयर ऑफ ऑल द टेम्परेचर चेक्स विद द स्टार्टअप्स, एंड दिस इज वन वेरी बिग लर्निंग What फॉर is मी, this मतलब। temperature check? आप थर्मोमीटर लेके जाते हो? So what happens is, actually it's a 4 month program. 4 month में we give them fortnightly temperature checks. कि वो every 15 days they come and they tell us कि what they have done in the last 2 weeks and what are their current challenges. So we will ideate, we will discuss, and then I will ask them questions to basically get out answers from them कि अब इस challenge का solution क्या है. So that is what my role as a mentor is, to basically get the answers out of them itself. And that is why I use a lot of techniques from mind management that I have learned in neurolinguistic programming, psychology, hypnotherapy, and now also cognitive behavior therapy. So I have done courses on all of this. Advise them and say, boss, valuation का 1 लाख रुपया लगेगा, and they will give you that. Yes. Huh? I've recently cracked one deal, which is 1.25 lakhs for a financial model valuations and their pitch deck. And they have easily agreed without any negotiation. अरे वाह. And so you are saying that these techniques of mind management and all will really help. So what are those Not just various? that, I mean, you also need to have experience, honestly, No, Anurag. I no, have that is a really given. See, because worked the in this focus of domain. this But conversation is to understand that you can be a professional with a given set of skill sets,
But then how can you use these additional techniques, A, to improve your physical and mental health, and B, to enable better interaction with clients and better lead conversions or better execution of projects and maybe long-term referrals? How does this whole gamut of techniques work? That is something that I was really curious to know about, and which I'm sure the audience will also, उनको काफी मजा आएगा इसको समझ के. सो बेसिकली हम लोग जितने भी डिसीजंस लेते हैं ना अनुराग, इट इज ऑल टेकन सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली मतलब and subconscious mind is such which is always impacted by emotions. So आप जब client से बात करो तो you have to basically understand where the client is coming from, why he is so emotional about his startup. तो आपको वहां पर उनको मतलब value add दिखाना है कि yes right, if this person comes on board तो मतलब जिस चीज से मैं कनेक्ट करता हूँ इस बिजनेस से इमोशनली, दिस पर्सन ऑल्सो कनेक्ट्स इमोशनली विद दैट। यू हैव टू आइडेंटिफाई विद दैट। अगर आप वो क्रैक कर सकते हो ना, then you get into their subconscious mind and then decision making is easy for them, because once you have convinced the subconscious mind, the conscious mind agrees to it. So this is the concept of neuro-linguistic programming. That's how mind works. Okay. So for this, basically, like you've undergone some formal training, or you've just read and I have self-learned. taken training for neuro-linguistic programming thrice actually. So it's a difficult concept, of course. And given the kind of conditioning we have since childhood, we all going to schools. Thankfully, my daughter is homeschooled and she doesn't have to go through all this crap. But sorry about saying that out loud, No, but no, that's my you had become very sentiment famous on about. LinkedIn when you had resorted to homeschooling. I remember तुम्हारा वो पोस्ट काफी वायरल हुआ था उस समय, होमस्कूलिंग, आई थिंक वो कोविड के समय कुछ हुआ था. सो शी स्टिल डूइंग होमस्कूलिंग. Yeah, we tried to get her back to school. उसने 4-5 महीने किया, उसके बाद फिर छोड़ दी. She is very happy with homeschooling. But my son wanted to go back to school. So he is continuing school right now. He is in grade 8, but my daughter doesn't go to school anymore. कौन पढ़ाता है उसको? हम लोग पढ़ाते नहीं है उसको. Basically, she picks up things that she likes to do and we just help them facilitate, what she likes to do. तो कोई formal schooling, formal training नहीं है उसका. We are guided by whatever she likes and we just help her navigate through that learning process. So Fantastic. I she's not mean, doing math, she's not doing English, she's not doing history, but nothing how of will that that sort. But she's converge doing with her that job. mainstream profession? I mean, कभी बोर्ड तो देना पड़ेगा ना, क्लास 10 का, 12 का, या Anurag, she doesn't need to. She already has a startup. अच्छा. Okay. She's Yes, yes. 9-year-old and she has her startup named Sweet Treats by Manat. She loves baking. तो उसने अभी दिवाली पे अपना ब्रांड लॉन्च किया था, Sweet Treats by Manat, and she prepared the whole Diwali gifting herself. My God, 9-year-old kid. Then I must interview Yes. her, not you. Yes, She is सही a है. shy girl, but I mean, she likes attention. So she really loves baking and she loves, serving it to people. और जब वो लोग उसको बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा बना है, मतलब उसकी शक्ल पे देखने लायक खुशी होती है. तो her vision is that she wants to grow up and have a, bakery of her own जहाँ पे वो सिर्फ chocolates के आइटम बनाएगी. Oh, okay, okay, सही है. I had one question. I had seen a post of you before and after in terms of physical health and mental health. So last 2-3 years में what is it that you have done focus तरीके से कि step A, B, C in order to become fitter on the both mental and the physical front? So Anurag, for that I'll चार्टर्ड have to अकाउंटेंट start with जनरली some. क्या होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़े से वो एक्सेल ओरिएंटेड, हमेशा स्क्रीन पे रह रहे कि कंप्लायंस की डेडलाइंस होके भूल जाते हैं कि एक शरीर भी है हमारा, मेंटल हेल्थ भी होता है. You won't believe मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए and 80% of them are either CAs or aspiring chartered accountants. That is the level of stress in chartered accountants. Okay, so what did you do to get over that? Yeah, so I'll have to first get back to, what was the trigger actually. So during the second wave of COVID, when it hit, there was a lot of deaths happening around me and I suddenly had a panic attack at that time. So when that happens, I did not know that is a panic attack, but मतलब हुआ था, it was like, I'm dying kind of a situation था, मुझे लग रहा था heart attack है, and this is the end of it. But by God's grace, I came back and then I realized that there was something different in me. I was not feeling, myself. कुछ तो गड़बड़ था. मतलब
आई वुड बी वेरी डिप्रेस्ड और मुझे मतलब क्राइंग स्पेल्स होते थे। देन आई स्पोक टू अ डॉक्टर, उन्होंने मुझे बोला दिस इज़ पीटीएसडी, व्हिच इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो जब ये होता है, तो बेसिकली इट इट इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन एंड यू हैव टू टेक एंटी डिप्रेसेंट। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ये मेंटल हेल्थ कंडीशन मेरे साथ हुआ है। मतलब बिकॉज़ इतना आई वाज़ नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग, माय माइंड वुड गो ब्लैंक, मेरे को मतलब अचानक से दिखना बंद हो जाता था। आई वाज़न्ट इवन समटाइम्स एबल टू वॉक, मतलब आई लॉस्ट माय कॉन्फिडेंस टू इवन वॉक एट दैट टाइम। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट, अब एंटी डिप्रेसेंट से हम सबको को डर लगता है कि भैया ये है क्या चीज़? हाँ, हमेशा SSRIs और सुना है कि ये बहुत खराब चीज़ है। तो मैंने एक बार तो एक खाई और एक खाने से ना मेरा सर ऐसे चक्कर खाया, मैंने कहा भई ये तो ना हो पाएगा मेरे से, मैं एंटी डिप्रेसेंट तो नहीं ले पाऊँगी। फिर मैं दूसरे डॉक्टर से मिली, उन्होंने भी मुझे यही बोला कि आपको लेना पड़ेगा। तीसरे से मिली, उन्होंने भी यही बोला। फिर चौथे से मिली, उन्होंने भी यही बोला कि आपको एंटी डिप्रेसेंट्स लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। आई वाज़ लाइक अच्छा ठीक है, इसका उपाय क्या है? तो मतलब बहुत ही फॉर्च्यूनेट थी मैं कि आई गॉट एन आयुर्वेदिक डॉक्टर थ्रू अ फ्रेंड। तो मैं उनको जाकर के मिली, तो उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने मुझे कुछ टेक्निक्स बताए माइंड मैनेजमेंट के, और मुझे उन्होंने गट को मैनेज करने के लिए मेडिसिन्स दिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। तो आई ट्रस्टेड दोज़ मेडिसिन्स बिकॉज़ दोज़ वर प्लांट बेस्ड एंड मुझे ये पता था कि केमिकली फॉर्म्ड नहीं है एंड मे बी दिस इज़ नॉट दैट हार्मफुल। तो मुझे काफ़ी घर वालों ने अपोज़ किया कि नहीं, आयुर्वेदा इज़ नॉट गुड, स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, ये है, वो है, बट आई वाज़ लाइक कि ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। आई थिंक दिस इज़ मच बेटर देन अ, मच बेटर देन एंटी डिप्रेसेंट्स एट लीस्ट। तो वो स्टार्ट किया, तो इट टूक मी अराउंड 6 टू 8 मंथ्स तो कि उस दवाई का असर होने में, बट इट वाज़ अ डिफिकल्ट टाइम, बट हुआ उस दवाई का असर एंड आल्सो द डॉक्टर गाइडेड मी ऑन सम माइंड मैनेजमेंट टूल्स एट दैट टाइम। तो ये सब चीज़ें जब मुझे लगा कि अच्छा माइंड मैनेजमेंट से ही ये ठीक करना है, देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट माइंड मैनेजमेंट कि ये होता क्या है? मतलब क्यों मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है? तो एक साइकियाट्रिस्ट से मैं मिली थी, उन्होंने मुझे कुछ बोला था अमिगडाला के बारे में। दैट वर्ड स्टक टू मी, अमिगडाला। फिर मैंने उसके ऊपर पूरा रिसर्च करना स्टार्ट किया। देन आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट अबाउट दोज़ बुक्स जहाँ पे वो अमिगडाला का मेंशन था, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में मेंशन था। दैट लेड मी इंटू गेटिंग बैक टू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। दैट लेड मी इंटू टेकिंग कोर्सेज़ ऑन साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैंने माइंड मैनेजमेंट टूल्स समझे कि क्या होता है। दिमाग के साथ आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, हैक कर सकते हो फॉर योर ओन बेनिफिट। And I started experimenting it on myself and it started showing results. So I got so much into mind management, मुझे इतना अच्छा लगने लगा। मैंने एक कोच हायर करी अपने लिए जो कि मुझे हेल्थ के लिए गाइड करती है फॉर माय न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। दैट आल्सो हेल्प्ड अ लॉट बिकॉज़ जब आपको मतलब पीटीएसडी रहता है, तो व्हाट हैपेंस इज़ अ लॉट ऑफ हार्मोन्स गेट रिलीज्ड इनटू योर बॉडी, जो कि आपकी बॉडी को धीरे-धीरे ऑर्गन्स को कमज़ोर करती हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फिटनेस प्रोग्राम होने का बहुत ज़रूरत है। So I did not know how to do it myself, so I hired a coach, which was also very helpful. And फिर on top of it, this whole mind management thing, मैंने हैबिट्स बनाना शुरू किया। मैंने मतलब गोल सेटिंग शुरू करी अपने लिए। फिर मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया अपना गोल सेटिंग के ऊपर, थिंक प्लान एक्ट डेली प्लानर। दिस इज समथिंग व्हिच आई पर्सनली यूज्ड फॉर 1.5 years. I saw it is working. Every 6 months I revise my goals and it was working wonderfully. मतलब मैं जब जाके देखती थी 6 महीने पहले मैंने जो गोल सेट किया है वो सारा टिक हो जा रहा था मेरा। फिर मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए गोल सेट करती थी एंड वो टिक कर रही थी। इतना मतलब इतना हैबिट में आ गया मेरा सब कुछ, वर्कआउट करना, खाना-पीना, एवरीथिंग। इट वाज़ सो इंटरेस्टिंग, तो मैंने वो प्रोडक्ट बना कर के फिर उसको डाला भी है एंड इट्स सेलिंग आल्सो वेल। आई होप द पीपल जो उसको यूज़ करते हैं वो उसको अच्छे तो से यूज़ कर ट्विटर पाएँ, पे है? उनको फ़ायदा हो। वो हमारे वेबसाइट पे है, www.we-rise.in पे वो प्रोडक्ट है सेल करने का। अच्छा। So you can go and buy it from there. फिर इसके बाद then I'm also giving webinars on how you can eliminate stress, not manage stress but eliminate stress, and that is a possibility. आपको हाँ, स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर मैनेजिंग स्ट्रेस, व्हाट इज हैपनिंग, जो आपके ट्रिगर्स है ना, आप उस ट्रिगर्स को वापस से सप्रेस कर दे रहे हो। दैट इज द सेम थिंग व्हाट एन एंटी डिप्रेसेंट डज टू यू। बट जब आपको बॉडी से कुछ ट्रिगर हो रहा है ना, इट्स अ सिग्नल फ्रॉम योर ब्रेन दैट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड यू नीड टू गो एंड रिजॉल्व द रूट कॉज। जब आप उस रूट कॉज को रिजॉल्व कर देते हो, तो आपको वो ट्रिगर होना बंद हो जाता है एंड इट स्टॉप्स कॉजिंग यू स्ट्रेस, एंड दैट इज व्हाई आई कॉल इट स्ट्रेस एलिमिनेशन एंड नॉट मैनेजमेंट।
I, give trainings on goal setting. I give trainings on, how you can create long lasting habits using your subconscious mind. I'm also going to give a training soon on how you can make more money, attract more money using your subconscious mind. So वो सब this है is ये all जो possible. सीक्रेट वगैरह बोलते हैं, मेरे को तो थोड़ा हवाबाजी लगता है वो सब, जो तो वो ये तो एक्चुअली वो सीक्रेट। सीक्रेट में एक्चुअली क्या है, इस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया गया है कि आप सिर्फ सोचते हो और वो हो जाता है। ऐसा होता नहीं है। यू हैव टू टेक एक्शंस अनुराग। सिर्फ सोचने से नहीं होता है, लेकिन सोचना इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इट। अनलेस यू विजुअलाइज, अनलेस यू थिंक अबाउट इट, व्हाट हैपेंस जब आप सोचते हो, जब आप विजुअलाइज करते हो एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज इमोशनली इन्वेस्टेड इन दैट आइडिया ऑफ रियलाइजिंग अ ड्रीम दैट यू हैव सॉ, वो आपको अंदर से ट्रिगर करने लगता है सो दैट यू टेक दोज अप्रोप्रिएट एक्शंस टू मेक इट इनटू अ रियलिटी। तो इट इज न्यूरो साइंस ओनली, थोड़ा सा हवाबाजी करके इसको बताया जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई पीपल डोंट ट्रस्ट इट, बट इट, if you'll go into the logic of it, it works. आई मीन वो सीक्रेट आई थिंक थोड़ा ओवर हाइप किया हुआ है, बट या इफ यू थिंक अबाउट इट एंड इवन। थोड़ा ओवर हाइप्ड है, यस। सिर्फ सोचने से नहीं होता है चीज अपने आप, बट यस, सोचना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली व्हाट योर माइंड नीड्स इज अ विजन, एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विजन, जिससे आप इमोशनली कनेक्ट कर पाए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज ही इमोशन है, वो सिर्फ वही समझता है। एब्सोल्युटली एंड आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज मैंने जब लास्ट ईयर जॉब छोड़ा था, so there were two options. A, I would have fallen into like self pity वाले मोड में, अरे मार्केट में वर्क नहीं है, कैसे काम मिलेगा, जिससे भी बात करो डिस्करेज करता है। देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार वो तो नहीं होगा, लेट मी अट्रैक्ट वर्क। और जब आप ऐसा सोचते हो तो देन यू रीच आउट टू मोर पीपल ऑल्सो, एंड व्हेन यू रीच आउट टू Exactly. पीपल। You take those actions that is required to get that work. But for that, you have to start thinking in that positive manner कि this is what I deserve. This is what I want. मैं जब 73 kgs पे थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 60 अचीव कर पाऊंगी, बट मैंने एक गोल सेट कर लिया था अपने लिए, and I used to visualize myself 60 kgs, and I'm now 57. माय गॉड। हाँ मतलब वही है, कई लोग मेरे को यही बोलेंगे कि 16 ईयर की है कि क्या एज है, आई डोंट नो। No, I'm not You lost 16, I'm 17 40. kgs, नहीं 16 kgs in a span of Yes. 2 years, and how did that happen? अगेन पूरा न्यूट्रिशन एंड फिटनेस का रोल था इसमें, बट न्यूट्रिशन एंड फिटनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको अपने ब्रेन को तैयार करने के लिए फॉर व्हाट यू वांट। तो उस वक्त मेरे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट था अनुराग, दैट आई वाज हैविंग सो मेनी मेडिसिन एवरी, मतलब इतना इतना दवाई मैं खाती थी। तो आई शोड दिस विजन टू माय माइंड दैट आई वांट टू हैव अ लाइफ व्हिच इज अ मेडिसिन फ्री लाइफ। आई डोंट वांट मेडिसिन, आई You डोंट achieved वांट टू that? ग्रो ओल्ड लाइक दिस। आई डोंट टेक अ सिंगल मेडिसिन नाउ, आई एम एब्सोल्युटली मेडिसिन फ्री। तो वो आयुर्वेदिक दवाई भी छूट गई सारी, जो गट यस। ये था। ओके, फैंटास्टिक। तो वेरी इंटरेस्टिंग Now टेकअवे। food is my medicine. हाँ, fantastic. And I think when I attended your session, you also said that if there is a tendency for binge eating, then you eat salads instead of taking some more carbs and all. So yeah, that's a very different science, but it is interesting that someone can lose 16 kgs by doing focused efforts. And that's important, waking up in the morning. And I remember The in the more session you important, told कि trigger अपने पास रखो, कि shoes रखो, जैसे the moment you wake up and you see the shoes, then your mind will be like, बहुत समय को I got to wear these shoes and move out of the house and do some running. तो वो ट्रिगर yeah. अपने So को the पास। trigger should last for less than 20 seconds. मतलब आपको ट्रिगर होने से, जो आपने जूते को देखा आपको ट्रिगर हुआ, within 20 seconds you wear those shoes, and then you would be ready for your habit. या और वही मैं अपना कंबल ही को देखता हूँ उठ के, तो मैं फिर सो जाता हूँ वापस 1-1.5 घंटा। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। या आई गेट दिस पॉइंट। तो मेरे को वो चीज बहुत रेजोनेट किया था उस दिन कि यस, दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। हम लोग किसी पॉजिटिव पर्सन से बात करते हैं तो हम लोग को लगता है कि मार्केट में बहुत काम है, अपने काम खोज सकते हैं, काम मिलेगा। किसी स्टेडियस से बात करेंगे, बोलेगा अरे क्यों नौकरी छोड़ दी, कुछ नहीं है, हम खुद ही दुखी है। सो आइडिया शुड बी टू कट आउट सच पीपल फ्रॉम आवर लाइफ एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव पीपल। Absolutely. I mean, your circle of influence makes so much difference, Anurag. मतलब it can make or break your career and your future. मतलब इसीलिए it's very important to handpick those people that you want to be around with, so that they don't pull you down. मतलब यस। जो आपकी जो विजन है उसके साथ लोग अलाइन कर सके, ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए, अदरवाइज
अकेले रह लो, ऑनेस्टली। हाँ, yes, yes. That is what I have realized. क्योंकि last 1 year में I have chosen to be alone rather than in bad company, और वो बहुत work करता है because negative इंसान से मेरे लिए भी I started staying in such company that I मतलब I have never taken alcohol, but मेरे आसपास ऐसे लोग थे जिनके लिए ये बहुत रेगुलर चीज था, and I also started taking it, and उसका impact पड़ा मेरे ऊपर mind and body पे। तो मतलब I realized okay, this is not the kind of people I should be staying with, and I made my distance. I made my distance, and ठीक है, इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, पीपल वर नॉट हैप्पी विद माय डिसीजंस एंड दे स्टार्टेड जजिंग मी, बट अल्टीमेटली व्हेन आई लुक बैक दे आर स्टिल देयर एंड आई हैव ग्रोन सो मच. I have become physically healthy, mentally healthy, financially more healthy than anybody can imagine where I was last year. And when a conventional chartered accountant gets into this kind of consulting kind of work, तो कुछ people के mind में hindrance रहता है, कुछ obstruction रहता है कि नहीं भाई तुम क्या कर पाओगे, तुम तो भाई खाता ही कर लो, या people are open to CAs acting as startup mentors. अनुराग, मैं अपने आप को सीए ज्यादा बोलती भी नहीं हूँ अब ऑनेस्टली, क्योंकि मेरा मतलब जो रोल है वो सीए से मूव होकर के वैल्यूएशंस के ऊपर चला गया, सो आई एम क्रिएटिंग माय नीश इन दैट कैटेगरी. आप सब कुछ नहीं कर सकते. सो इफ समबडी इज कमिंग एंड टेलिंग मी कि आप मेरा इनकम टैक्स भर दो, हेलो सॉरी, आई डोंट डू दैट, क्योंकि मैं उतना पढ़ती ही नहीं हूँ इनकम टैक्स के बारे में, इतना रेगुलर अपडेट्स नहीं. आई माई सेल्फ हैज अ सीए टू टेक केयर ऑफ दैट. Right. So I hire a CA who takes care of my income tax and accounting. तो वो मैं किसी और के लिए क्या ही करूँगी, राइट? तो वो है ही नहीं मेरा नीश. मेरा नीश है बिजनेस मॉडलिंग, वैल्यूएशंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, तो मैं उसी पे फोकस करती हूँ. तो कोई मेरे को आके बोलता भी है कि आप सीए हो, तो मैंने है सीए, लेकिन अगर आपको अगर आपके कान में प्रॉब्लम है तो आप ईएनटी के पास जाते हो, आप आई डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, राइट? हाँ. So don't come to me with your accounting problems because I am not that kind of doctor. Yeah, so over the period of time हम लोग niche develop करते हैं अपना, that is what it is. And I think society will Absolutely. also really want to respect those people who realize कि उनका क्या niche है, and that niche can be anything. चाहे वो Yeah. वैल्यूएशन हो, चाहे And we इवन have to टैक्सेशन हो. really, Anurag, start saying no. मतलब हम लोग हर चीज को yes बोल देते हैं. We really need to learn how to say no. मतलब हर काम मत उठाओ. यस, एंड इट चोक्स बैंडविड्थ, आपकी हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड यू शुड प्रायोरिटाइज कि भाई मैं कुछ काम करूंगा और अच्छा प्रीमियम काम करूंगा. सो रिसेंटली आई हैड मिस्ड आउट. सो एक क्लाइंट को अकाउंटिंग करवाना था, एंड आई कोटेड अ वेरी नॉमिनल सम, बट वो पूरा दुनिया में जा जाके छांट के उसको उससे भी आधा रेट मिल गया. एंड देन व्हेन दैट डिसीजन वाज कम्युनिकेटेड टू मी, आई सेड वेरी गुड, वी शुड वर्क ओनली विद प्रीमियम क्लाइंट्स. अच्छा है, ऐसा चिंदी क्लाइंट Absolutely. अगर नहीं, चला गया तो. किस clients के साथ, अनुराग, they will make your life hell later on. So if they are initially also negotiating with you for your price, इसका मतलब they don't find value in your work. यस. I mean, we need to start valuing our work ourselves. मतलब अगर हम लोग अपना डाउन प्राइसिंग करते हैं, इसका मतलब we don't value our work. जब हम ही वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला कहाँ से वैल्यू करेगा? Absolutely, absolutely. Brilliant insights, brilliant insights. I think आज के कॉन्वर्सेशन में हम लोग को काफी कुछ पता चला इन टर्म्स ऑफ, एंड लेट्स से कोई को स्ट्रेस हो जाता है बिकॉज ऑफ एन एग्जाम विच इज नॉट गेटिंग क्लियर, एक बहुत स्टूपिड बॉस मिल गया है, या सपोज एक बहुत बैड लाइफ पार्टनर मिल गया है, या समथिंग हैज हैपेंड, समवन हैज हैड अ डेथ इन द फैमिली, एंड बिकॉज ऑफ दैट, तो हाउ डज वन डील विद पीएसटीडी, with PTSD. PTSD, post traumatic stress disorder? And what would be your final lines of advice for audience on this channel? अनुराग, मतलब पीटीएसडी को रिजॉल्व करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट शुड बी डन फ्रॉम द रूट्स, बट ऑनेस्टली it's difficult, believe me, because I have been in that journey. It's difficult, so I would advise, if somebody is going through something like that, take professional help to begin with. मतलब जितनी पढ़ाई मैंने करी है, मुझे नहीं लगता कि इतना बैंडविड्थ लोगों के पास होगा उतना पढ़ने के लिए एंड उतना समझने के लिए. तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट PTSD is that it can be reversed and Yeah. it can be resolved from the roots. तो आपको जब भी कभी भी मतलब स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है बॉडी में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों ट्रिगर हुआ. You have to realize what are the triggers to your stress response, start being aware of those triggers, and start trying to understand कि इस trigger से मेरे मन में मेरे अपने बारे में क्या limiting belief है.
So I'll give you an example. मतलब so I was when I was struggling with PTSD, और उस वक्त होता क्या था कि मेरा एमिगडाला हाइपर एक्टिव था। तो आपका एमिगडाला ट्रिगर होता है सबसे पहले, और जब वो हाइपर एक्टिव है तो वो छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर होता है और आपको स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। दिस इज समथिंग ऑफ न्यूरो साइंटिफिक टर्म्स में बोल रही हूँ मैं, बट लेमैन में इसको ये बोलो कि किसी ने आपको कुछ बोला और आपके कुछ प्रीवियस हिस्ट्री है रिलेटिंग टू सेम इवेंट, और आपको ट्रिगर हो जाता है क्योंकि आपको पुरानी हिस्ट्री याद आ जाती है। यस ठीक है, यस तो यस। आपको मालूम नहीं है कि पुरानी हिस्ट्री की वजह से आप ट्रिगर हुए हो, बट रीजन वही होता है। तो मी एंड माय हस्बैंड वी वर जस्ट वॉकिंग एंड वी वर डिस्कसिंग फाइनेंसेस। तो मतलब मनी को लेकर के कुछ डिस्कशन हुआ एंड सडनली मुझे चक्कर आने लग गया। आई डिड नॉट रियलाइज कि हुआ क्या, बट आई न्यू बाय दैट टाइम दैट दिस इज अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। कुछ तो हुआ है, मेरे को स्ट्रेस रिस्पॉन्स हुआ है। आई टोल्ड माय हस्बैंड देयर इज सम प्रॉब्लम, लेट्स गो बैक। तो हम लोग घर वापस आए। फिर आकर के आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ट्रिगर क्या हुआ, मुझे चक्कर कब आया। तो मुझे चक्कर आया जब हम लोग फाइनेंस डिस्कस कर रहे थे। देन व्हाट आई डिड वाज कि एक तो मुझे समझ आ गया कि फाइनेंस डिस्कस कर रहे थे तब मुझे चक्कर आया। देन आई tried to basically tap into my subconscious mind, creating an alpha state. तो दिस इज ऑल्सो अगेन न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट कि आपको आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अल्फा स्टेट में एक्टिवेट होता है। अल्फा स्टेट वो होता है जब आपके थॉट्स 14 to 15 बिट्स पर मिनट होते हैं। तो मैंने वो स्टेट क्रिएट करी एंड देन आई वेंट बैक टू माय प्रीवियस हिस्ट्रीज कि इस ट्रिगर से रिलेटेड मेरा हिस्ट्री क्या है। तो आई कुड रिकॉल अ लॉट ऑफ इवेंट्स एंड इन्सिडेंसेस दैट हैज हैपेंड। एंड फिर बचपन की जाकर के मुझे एक बात याद आई उसी वक्त कि मैंने एक बैग खरीदने को बोला था अपने पापा को, एंड ही सेड दैट नहीं, हम बैग नहीं खरीदेंगे तुम्हारे लिए। एंड द माइंड मेड अ डिसीजन एट दैट टाइम दैट आई एम नॉट फाइनेंशियली फ्री। सो दैट वाज माय लिमिटिंग बिलीफ कि मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हूं टू टेक माय ओन डिसीजंस। सो दिस वाज समथिंग दैट गॉट एंकर्ड इनटू माय माइंड इन द चाइल्डहुड। एंड उसके बाद जितने इवेंट्स वैसे सिमिलर होते गए, वो एक पैटर्न स्ट्रांग बनता गया मेरे माइंड में, वो बिलीफ स्ट्रांग बनता गया दैट आई एम नॉट financially free to make choices. Oh, all And right. that is what that started giving me triggers when my amygdala was hyperactive. All ठीक है, right. तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है दैट यू हैव टू गो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज योर लिमिटिंग बिलीफ रिगार्डिंग एनी स्ट्रेस दैट यू आर गेटिंग। वो जो लिमिटिंग नेगेटिव बिलीफ होता है उसको आपको एक एम्पावरिंग बिलीफ में रीफ्रेम करना होता है। सो आई रीफ्रेम्ड इट एज आई एम फाइनेंशियली फ्री, and then you have to affirm this for minimum 63 days every day, creating an alpha state. So basically जो पैटर्न आपके दिमाग में बना है आई एम नॉट फाइनेंशियली फ्री का, उसको आपने रिवर्स करके एक नया पैटर्न सेट किया है दैट आई एम फाइनेंशियली फ्री। एंड व्हेन यू डू दैट, योर स्ट्रेस ट्रिगर्स विल गो अवे। Fantastic. That's very interesting. ये 21 days अब 63 बोलने लगे क्या? पहले बोलते थे ना हैबिट तो फॉर्मिंग अभी जो 20। लेटेस्ट रिसर्च है, डॉक्टर कैरोलाइन लीफ का मैंने काफी रिसर्च पढ़ा है, उसमें यही है कि 63 डेज बोलने लगे हैं। बिकॉज मतलब पुराने हैबिट्स को ब्रेक करके नया इंस्टॉल करके उसको एक पैटर्न क्रिएट करने के लिए इतना टाइम लग जाता है। 21 डेज इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन बाय द वे। Fantastic. I think I learned a lot from this podcast today, and I'm sure कि जो users हैं, जो viewers हैं of this podcast, they will really learn a lot from this podcast and can continue to follow you on your various social media handles. And I'm sure that can be quite an enriching journey because आज के डेट में stress, transformation, ये सब चीज बहुत important है। हम लोग focus नहीं करते, हम लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं एक रैट रेस में, दुखी होके, सुखी नहीं रह के भी, बट दौड़ रहे हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट समटाइम्स टू तो स्टेप बैक एंड अनुराग, तो अंडरस्टैंड। मतलब वी कैन नॉट, मतलब किसी को जज नहीं कर सकते, बिकॉज आई वाज आल्सो इन द सेम जर्नी। लकीली आई हैड दैट एक्सपीरियंस ऑफ पीटीएसडी that I had to go through the whole process of learning and development, and that's how I could come out of it. हर किसी को वो एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता है, तो वो घिसे जा रहे हैं घिसे जा रहे हैं, और हाँ, शायद मैं किसी भी ना यही बट करती रहती हूँ जिंदगी भर। राइट, तो मतलब एब्सोल्युटली। I really owe it to my experience, and I feel really lucky to have gone through that phase because I have really learned and grown as a person after that incident. Fantastic. Thank you so much for coming and sharing your thoughts on this channel. Thanks, Neetu.
And I'll share your LinkedIn profile in the description so that viewers can connect with you and understand what you are doing. Thank you. Yes, sure. All Thank right. you, Anurag. Bye bye. Thanks.